Hello everyone, today we will see about the factors affecting drug absorption. We know that absorption is defined as it is the movement of unchanged drug from the site of administration to the site of action. So these are the different factors which are affecting the absorption. First is the pharmaceutical factors, another one is the patient related factors. In this, the pharmaceutical factors is divided into two. First is the physicochemical properties of the drug substance. It includes drug solubility and dissolution rate, particle size and effective surface area. Third is the polymorphism and amorphism. Fourth is pseudopolymorphism. Fifth is salt form of the drug, and sixth is lipophilicity of the drug, and seventh is pK of the drug and pH. And lipophilicity of drug and pK of the drug and pH, it is relating to that of the pH partition hypothesis. Next is the drug stability, and the last one is the stereochemical nature of the drug. Dosage, form, characteristics and the pharmaceutical ingredients. It will include disintegration time, dissolution time, manufacturing variable, pharmaceutical ingredients, or we can say excipients, nature and type of dosage form, product age and storage conditions. Patient related factors, it includes relating to anatomical, physiological and pathological characteristics of patient. It include age, gastric emptying time. Third is intestinal transit time. Fourth, blood flow through GIT. Fifth, disease state. Sixth, gastrointestinal pH. Seventh one is gastrointestinal contents, other drugs, food, fluid, other normal GI content. And eighth one is the pre-systemic metabolism by luminal enzyme, gut wall enzyme, bacterial enzyme or hepatic enzyme, which is also we can say liver enzyme. So RDS or RLS क्या होता है? It is a rate determining step, or we can say rate limiting step. So it is defined as rate at which the drug reaches the systemic circulation is determined by the slowest of the various steps involved in the sequence. So first we will see about the physicochemical properties of drug substance. In that, the first one is drug solubility and dissolution rate. Rate determining step in orally administered ड्रग्स आर, इसमें क्या होते हैं? दो होते हैं RDS. पहला जो है रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, दूसरा जो है ड्रग परमिशन थ्रू द बायोमेम्ब्रेन. इन दिस पहला जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जिसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स फॉर्म करेगा. फिर वो उसका जो है डिसोल्यूशन हो जाएगा. डिसोल्यूशन होने पे क्या होता है? ड्रग जो है सोल्यूशन में एब्जॉर्प्शन साइट पे प्रेजेंट रीच होगा. ड्रग इन द सोल्यूशन साइट, सोल्यूशन एट द एब्जॉर्प्शन साइट. डिसोल्यूशन में क्या होता है? रेट लिमिटिंग स्टेप. यहाँ पे क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप डिसोल्यूशन है. So RDS, rate determining step for lipophilic drug is the dissolution. In this example is the griseofulvin and the spironolactone, and these are poorly aqueous soluble drug. Dissolution rate limited, it is also known as dissolution rate limited. नेक्स्ट क्या होता है? ड्रग इन सोल्यूशन एट द एब्जॉर्प्शन साइट से वो कहाँ पे जाएगा? ड्रग जो है बॉडी में जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है? परमिशन अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन होता है. इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर, ये जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. परमिशन अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर द हाइड्रोफिलिक ड्रग्स. हाइड्रोफिलिक इज नथिंग बट वाटर लविंग ड्रग्स. एग्जाम्पल इज द क्रोमोलियन, सोडियम or neomycin, and it is also said to be as permeation rate limited or transmembrane rate limited. इसमें क्या था? हाई एक्वेस सॉल्युबिलिटी ड्रग जो है इजीली पास होते हैं. एंड फिर रैपिड डिसोल्यूशन होगा उनका. BCS क्लासिफिकेशन, इसमें क्लास है, सॉल्युबिलिटी है, परमेबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न, रेट लिमिटिंग स्टेप बताया एब्जॉर्प्शन में उनका कौन सा होता है, और एग्जांपल्स दे रखा है. पहला जो क्लास है वो क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी. एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो है उसका कैसे? वेल एब्जॉर्ब होता है. और रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो क्या है? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. एग्जाम्पल है डिल्टियाजम है. नेक्स्ट क्लास इज दी क्लास 2. इट विल इंक्लूड दी सॉल्युबिलिटी इज लो एंड परमेबिलिटी विल बी हाई एंड एब्जॉर्प्शन पैटर्न इज वेरिएबल in, and the rate limiting step is dissolution. Example is nifedipine. Third one is high solubility with low permeability, and the absorption pattern will get vary, so it is variable, and the permeability is the rate limiting step, and insulin is one of the example of it. Class 4th, it is the low solubility भी होती है और low permeability होता है. ये जो है poorly absorb होंगे, और इसका example है Taxol.
डेफिनेशन देखते हैं सॉल्युबिलिटी की। एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी या फिर इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जब भी हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तब उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, pH एंड प्रेशर। इट इज़ ए स्टैटिक प्रॉपर्टी। इन द केस ऑफ द डिसोल्यूशन रेट इट इज़ ए डायनामिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट गोज इनटू द सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, pH, सॉल्वेंट कंपोजिशन एंड कांस्टेंट सॉलिड सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ द डिसोल्यूशन। पहले हम डिसोल्यूशन की डेफिनेशन के देखते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस जो है सोल्यूबलाइज हो जाता है सॉल्वेंट में, और वी कैन से मास ट्रांसफर, सॉलिड से लिक्विड फेज में जो है मास ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द लिक्विड फेज। Next, there are the three theories. First one is the diffusion layer model. It is also known as film theory. Second one is the Danckwerts model. It is also said to be as penetration or surface renewal theory. Third one is the interfacial barrier model, double barrier, or it is also said to be as limited solution theory. Diffusion layer model, it is also said to be as film theory. इसमें क्या होता है, ये जो है सिंपल मेथड है और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, एज्यूम दैट देयर इज़ अ स्टैग्नेंट लेयर या फिर डिफ्यूजन लेयर विच इज़ सेचुरेटेड विद द ड्रग एट ए सॉलिड लिक्विड इंटरफेरेंस, और ये जो रैपिड स्टेप है। नेक्स्ट जो होता है डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम द स्टैग्नेंट लेयर टू दी बल्क ऑफ द सोल्यूशन। ये जो है स्लो स्टेप होता है। इसमें ये जो है देयरफॉर इट इज़ ए RDS इन दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन ड्रग डिसोल्यूशन। तो ये यहाँ पे डिफ्यूजन लेयर मॉडल के बारे में बताया डायग्राम में। यहाँ पे क्या है, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स है, और ये आउटर साइड पे क्या है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेरेंस है। स्टैग्नेंट लेयर, स्टैग्नेंट या फिर डिफ्यूजन लेयर, उसका थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। और ये जो है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है इसमें, एंड द CB इज दी बल्क ऑफ द सोल्यूशन विद कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वंस द सोल्यूट मॉलिक्यूल पास थ्रू द लिक्विड फिल्म बल्क फ्रेम इंटरफेस रैपिड मिक्सिंग प्रोसेस अकर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है डिस्ट्रॉयड होता है। द रेट ऑफ द सोल्यूट मूवमेंट एंड देयरफॉर द डिसोल्यूशन रेट आर डिटरमाइंड इंटायरली बाय द ब्राउनियन मोशन डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड फिल्म। नॉइज विटनी इक्वेशन देखते हैं। इसमें क्या है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन व्हेन द प्रोसेस इज डिफ्यूजन कंट्रोल। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका है dc/dt इक्वल टू K CS माइनस CB। dc/dt क्या होता है, it is the dissolution rate of the drug and K is the dissolution rate constant जो कि फर्स्ट ऑर्डर, एंड CS जो है कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का कितना कॉन्सेंट्रेशन है स्टेगनेंट लेयर में, और दूसरा हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बल्क सोल्यूशन एट टाइम T। देन नेक्स्ट इज इन नर्स्ट एंड बर्नर it incorporated fixed first law of diffusion and modified Noyes-Whitney equation to dc/dt equal to dA K W by O CS minus CB upon VH. D is the diffusion coefficient. It is the diffusivity of the drug. A is the surface area of the dissolving solid. K W by O water oil partition coefficient of the drug. V is the volume of dissolution medium. H is the thickness of stagnant layer. CS minus CB concentration gradient for diffusion of drug. यहाँ इसमें क्या बताएं, अंडर द सेम कंडीशन क्या आता है, इन वीवो जो होता है रैपिड अंडरगो इन वीवो डिसोल्यूशन अंडरगो द रैपिड डिसोल्यूशन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इन विट्रो एज देयर इज द सिंक कंडीशन इज मेंटेन, और वी कैन से द सिंक कंडीशन इज अचीव्ड। एंड इट इन विट्रो में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है फॉलो करता है, और ये जो है नॉन सिंक कंडीशन होता है। इन वीवो के कंडीशन में क्या होता है, जो वॉल्यूम और उसका जो सरफेस एरिया जो है सॉलिड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड वो जो है कॉन्स्टेंट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, dc/dt इक्वल टू K हो जाएगा, तो CB इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सिंक कंडीशन अचीव होगी। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ अ रैपिड डिसोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन। इसमें क्या होता है, एज्यूम करेंगे दैट द सरफेस एरिया ऑफ द डिसॉल्विंग solid remain constant during dissolution, which is practically not possible. So to account for particle size, Hickson and Crowell's cubic root law was developed. W
0 1/3 and minus W1/3 equal to kT, and this is the original mass of the drug, and W1/3 it is the mass of the drug remaining to dissolve at time t, and K is the dissolution rate constant. यहाँ पे ग्राफ में बताया ये जो है टाइम है, या ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ड्रग. सो ये जो है स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो क्या शो कर रही है, जीरो ऑर्डर डिजोल्यूशन अंडर सिंक कंडीशन पे, और फर्स्ट ऑर्डर डिजोल्यूशन नॉन सिंक कंडीशन का है. नेक्स्ट थ्योरी जो है दैट इज़ ए डैंकवर्ड्स और पेनिट्रेशन या फिर सरफेस रिन्यूअल थ्योरी. ये जो है अप्रूव नहीं करती, इट did not approve the existence of stagnant layer as said by the diffusion layer theory. और इसमें क्या होता है, इंस्टेड सेड, इस थ्योरी ने क्या बताया कि वहाँ पे जो है टर्बुलेंस एग्जिस्ट होता है डिसोल्यूशन मीडियम में. सो इंस्टेड सेड दैट टर्बुलेंस एग्जिस्टेड इन डिसोल्यूशन मीडियम नियर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस ड्यू टू एजिटेशन मास ऑफ एडीज और पैकेट रीच द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस एंड एब्जॉर्ब दी सोल्यूट एंड कैरी टू बल्क ऑफ सोल्यूशन. Since the solvent molecules are exposed to new solid surface each time, the theory is called surface renewal theory. V dC by dt equal to dm by dt equal to a cs minus cb under root y by d. Here the m is the mass of the solid and this is a gamma. Y is nothing but the gamma. Here it is written gamma is the rate of surface renewal, or we can say it is the interfacial tension. Next in this is the interfacial. This is the diagram for this. ये जो है डिजोल्विंग सॉलिड, ये जो है पैकेट है, ये जो फ्रेश पैकेट है सॉल्वेंट का जो कि अप्रोच कर रहा है इंटरफेस की तरफ, और ये जो पैकेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि सैचुरेटेड है ड्रग के साथ, और ये जो है इंटरफेस को लीव करता है. और ये CB जो होता है बल्क ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या सॉलिड लिक्विड इंटरफेरेंस हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे G नहीं है, यहाँ पे गैमा है, रेट ऑफ गैमा जो होता है रेट ऑफ सरफेस रिन्यूअल है. नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरफेशियल लेयर मॉडल क्या होता है. इन दिस मॉडल इट इज़ एज्यूम दैट द रिएक्शन एट सॉलिड सरफेस इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस, दैट इज़ the reaction at solid surface and its diffusion across the interface is slower than diffusion across liquid film. Therefore the rate of solubility in therefore the rate of solubility of solid in liquid film becomes the rate limiting than diffusion of dissolved molecules. Solute is dominant, no dissolution, and solute solvent में होगा तो क्या dominant होने पे वहाँ पे dissolution हो जाए. यहाँ पे इक्वेशन है G equal to KI CS minus CB. So G क्या है यहाँ पे, dissolution rate per unit area, and KI is the effective interfacial transport constant. फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन रेट. फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है फिजिको केमिकल ड्रग की. तो इसमें कि पहला क्या है, सॉल्युबिलिटी है, पार्टिकल साइज है, सॉल्ट फॉर्म, सीडो पॉलीमॉर्फिज्म, कॉम्प्लेक्सेशन, वेटेबिलिटी, और ये इंपॉर्टेंट होता है सॉल्युबिलिटी के लिए. इसमें एन एम्पेरिकल रिलेशन विच इज़ यूजफुल टू प्रिडिक्ट द डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स सॉल्युबिलिटीज आर इक्वल टू DC by dt 2.24 CS. आर क्या होता है यहाँ पे, डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग. ड्रग्स मस्ट हैव द मिनिमम एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ 1%, जिससे कि ये अवॉइड कर सकेंगे बायो अवेलेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सेकेंड इन दिस इज द पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया. पार्टिकल साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की तरह. उसमें क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं. पहला जो है एब्सोल्यूट सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है, टोटल एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का टोटल एरिया होता है सॉलिड सरफेस का. और इफेक्टिव सरफेस एरिया में क्या होता है, एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस जो कि एक्सपोज किया जा रहा है डिसोल्यूशन मीडियम में. नेक्स्ट इज जितना ज़्यादा सरफेस होगा, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा मोर विल बी दी डिसोल्यूशन रेट. सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल साइज रिड्यूस हो रहा है बाय दी माइक्रोनाइजेशन, इट विल रिजल्ट इन दी हाई डिसोल्यूशन रेट. ग्रेटर सरफेस एरिया, मोर द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड एक्वस सॉल्वेंट एंड द फास्टर डिसोल्यूशन. माइक्रोनाइजेशन क्या है, रिड्यूस करता है साइज ऑफ द पार्टिकल्स बिलो 0.1 माइक्रोन्स. इंक्रीज इन इंट्रिंसिक solubility and dissolution rate, therefore it will increase the interaction with solvent. Example is non-hydrophobic drug. Micronization of poorly aqueous soluble drug, example is griseofulvin, chloramphenicol and several salt of tetracycline. It will result in superior dissolution rate.
Micronization decreases the dose with the increased absorption efficiency. For example, griseofulvin dose decreases to half and spironolactone जो का डोज जो है वो 20 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा. हाइड्रोफोबिक ड्रग जो होता है माइक्रोनाइजेशन होने पे क्या है वो डिक्रीज़ कर देता है इफेक्टिव सरफेस एरिया और इसकी वजह से डिसोल्यूशन रेट जो है डिक्रीज़ होता है. एग्जांपल हमने देख लिया एस्पिरिन है, फेनासिटाइन, फिनोबार्बिटल. ये रीजंस है उनके. देखते हैं इसमें हाइड्रोफोबिक सरफेस ऑफ द ड्रग एब्जॉर्व करता है एयर ऑन टू देयर सरफेस जो उसकी वजह से वेटेबिलिटी जो है इनहिबिट हो जाए. पार्टिकल रीएग्रीगेट टू फॉर्म ए लार्ज पार्टिकल ड्यू टू देयर सरफेस ड्यू टू देयर हाई surface free energy which either float on the surface or settle at the bottom of the dissolution medium. Third is electrically induced agglomeration owing to surface charges prevent intimate contact of drug with dissolution medium. इसमें क्या होता है this surface area, that is a absolute surface area is converted to the effective surface area. इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको. एक तो इसमें हम सर्फेक्टेंट या वेटिंग एजेंट का यूज़ करेंगे. एग्जांपल इसमें दे रखा है पॉलीसॉर्बेट 80 जो कि इंक्रीज़ करेगा बाय अवेलेबिलिटी ऑफ फेनासिटिन बाय प्रोमोटिंग वेटेबिलिटी. और इसमें हम हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट्स का एडिशन कर सकते हैं. एग्जांपल इसमें है PEG है, डेक्सट्रोज है, PVP है. नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पार्टिकल साइज़ जो है रिडक्शन. पार्टिकल साइज़ रिडक्शन होने पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और डिसोल्यूशन रेट इज़ नॉट एडवाइजेबल. ये कुछ सर्कमस्टेंसेज है जिसमें डिसोल्यूशन रेट एडवाइजेबल नहीं है. मतलब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है पेनिसिलिन जी और इरिथ्रोमाइसिन. इसमें क्या होता है ड्रग जो है अनस्टेबल होता है या फिर डिग्रेड हो जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में. दूसरे केस में क्या है एग्जांपल है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन. तो इसमें क्या है ड्रग जो भी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. जब ड्रग कोई भी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तब. और सस्टेन रिलीज इफेक्ट इज़ डिज़ायरेबल. नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म. Depending on the internal structure, solid exists in a crystalline amorphous form. Polymorphs when substance exists more than one form crystalline, and the phenomena is known as the polymorphism. Property of the crystalline material to exist in one or more forms. Crystalline materials are having the strong bond within the molecules and they are having the high melting point as compared to that of the amorphous. So it is difficult to solubilize and it will also difficult to dissolve. Then there are the types. There are the two types. One is the enantiotropic polymorphs and the another one is the monotropic polymers. Enantiotropic में क्या होता है? These are polymers which one can be reversible and change into another form by altering its temperature and pH. For example is the sulfur. Monotropic polymer, one which is unstable at all temperature and pressure. Example is glyceryl stearate. Drug which is in amorphous will get easily solubilized and ultimately it will get dissolved. Internal structure of compound. Example in this is the crystalline and it is the internal structure of compound. एक तो crystalline होगा या फिर नॉन क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन जो होता है वो फर्दर डिवाइड है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फ एंड द मॉलिकुलर अडक्ट. नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है नोवोबायोसिन 10 टाइम मोर सोल्यूबलाइज. देन इसमें हम देखेंगे पॉलीमॉर्फ में इट इज़ फर्दर डिवाइडेड टू इनैंशियोट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक. इसमें पॉलीमॉर्फ का एग्जांपल दे रखा है रिबोफ्लाविन 3rd is 20 times more solubilized than the riboflavin 1. एंड इनैंशियोट्रोपिक हमने पहले डेफिनेशन देख रखी है. मतलब क्या है मतलब रिवर्सिबली चेंज होता है वन फॉर्म टू अनदर. एंड इन दिस दी इट इज़ इसमें क्या होता है वन विच इज़ अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम मोनोट्रोपिक कहते हैं. एग्जाम्पल हमने देख लिए थे ग्लिसरल स्टीरेट. मॉलिकुलर अडक्ट में क्या होता है दो होते हैं. इसमें दो टाइप्स है. फर्स्ट इज़ नॉन स्टिकियोमेट्रिक एंड स्टिकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स स्टोयोमेट्रिक. हाँ इसमें देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं एंड हाइड्रेट्स होते हैं. जो हाइड्रेट्स का एग्जांपल है थियोफाइलिन. डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव सॉल्युबिलिटी. स्टेबल में क्या होता है एनर्जी जो होती है कम होती है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो कम होता है. जनरली जो ड्रग्स होते हैं वो मेटास्टेबल प्रेफर किए जाते हैं, हाई एनर्जी होती है.
और हाई एक्वेस सॉल्युबिलिटी होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू हाई एनर्जी कन्वर्जन, हाई एनर्जी स्टेट कन्वर्टेड टू स्टेबल व्हेन केप्ट ड्राई स्टेबल व्हेन इट इज़ केप्ट ड्राई इट विल बी स्टेबल फॉर द ईयर्स। एमॉर्फोस इट इज़ इसमें क्या होता है, इंटरनल क्रिस्टल नहीं होता है, दे आर नॉट हैविंग द इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट होगा। इट इज़ कंसिडर्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्रेटर एक्वेस सोल्युबिलिटी दैन दी क्रिस्टलाइन, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एंड इसमें मेल्टिंग पॉइंट इज लेस एंड नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताया गया है, एमॉर्फोस, मेटास्टेबल, स्टेबल। सूडोपॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है, हाइड्रेट सॉल्वेट्स आता है। व्हेन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर इंट्रैप्ड इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमॉर्फ इट इज सेड टू बी अ सूडोपॉलीमॉर्फिज्म। सॉल्वेट्स का देखते हैं, द स्टाइकियोमेट्री द स्टियोक्योमेट्रिक the stoichiometric the stoichiometric type of adducts where the solvent molecules are encapsulated in the crystal lattice of the solid solvated and the trapped solvent as solvent of crystallization. Hydrates में क्या होता है, when the solvent in association with the drug is water it this solvated. इसमें अनहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स का बताया। अनहाइड्रेट्स क्या होता है, हाँ थर्मोडाइनेमिकली एंड इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी होती है वाटर के साथ और ये इसमें सॉल्युबिलिटी जो है इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेट्स। और हाइड्रेट्स में क्या होता है, लेस एनर्जी लगती है क्रिस्टल ब्रेक करने के लिए और जो हाइड्रेट जो है फास्ट डिजोल्व होते हैं, बेटर अवेलेबिलिटी है इसकी। इसकी एनहाइड्रेट्स की जो है फास्ट डिजोल्यूशन होता है और बेटर अवेलेबिलिटी है। इसका एग्जांपल है थियोफाइलिन एंड एम्पिसिलिन। ऑर्गेनिक नॉन एक्वेस सॉल्वेंट्स हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी देन नॉन सॉल्वेंट। एग्जांपल इसमें बताएं, एन पेंटोनॉल सॉल्वेट ऑफ फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एंड सक्सिनिल sulfathiazole and chloroform solvate of griseofulvin more soluble than non-solvatel forms। फिफ्थ देखते हैं, सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। सॉल्ट फॉर्म जनरली जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए होता है, इसकी वजह से वहाँ पे जैसे सोडियम फेनेटाइन हो गया, सोडियम इज देयर दैट इज ड्यू टू विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज इंक्रीजेस। ड्रग्स आर ईदर वीक एसिड और वीक बेस टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट ड्रग इज कन्वर्टेड टू द सॉल्ट फॉर्म। वीकली एसिडिक ड्रग जैसे हम बताएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड, सोडियम या फिर सोडियम एंड पोटेशियम एज ए बेस। एग्जाम्पल in this is the barbiturates, sulfonamides, these includes the potassium and the sodium salt form. Weakly basic drugs, weakly basic drugs, strong acidic form salt, HCl acid. Alkaloid example is the alkaloidal drug, HCl salt form इसमें example है। choline propanolamine salt of theophylline 3 to 4 times rapidly dissolved and gives the better bioavailability. pH of diffusion layer is important, not the bulk of the solution. Example is salt of the weak acid. It increases the pH of the dissolution layer which will promote the solubility and dissolution of weak acid and absorption is bound to be rapid. Other approach to enhance the dissolution and absorption rate of certain drugs in the formation. So in this in situ salt formation, it will increase the pH of microenvironment of a drug incorporation of a buffering agent. For example, we can say aspirin and penicillin. But sometimes more stable salt form of drug may result in poor absorption. For example, sodium salt of phenobarbital via its tablet swell and did not get disintegrated, thus dissolve slowly and result in poor absorption. Drug PK and lipophilicity and GI pH. pH, it is pH partition theory. pH partition theory, it was proposed by the Brodie. It is Brodie, and theory states that drug compounds of molecular weight greater than 100 which are primarily transported across the biomembrane by passive diffusion. The process of absorption is governed by dissociation constant of drug, lipid solubility of unionized drug,
pH at absorption site. Lower pK of acidic drug, stronger acid, that is the greater proportion of ionized form of particular pH. Higher pK of basic drug, stronger base, and it will increase the lipophilicity and increase the or enhance the absorption. Drug pK and the GIT pH. इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन और अनायनाइजेशन के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन. इसमें क्या होता है, वीक एसिड पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीके प्लस लॉग आयनाइज ड्रग अपॉन अनआयनाइज ड्रग. परसेंटेज ड्रग आयनाइज 10 pH माइनस पीके 1 + 10 pH माइनस पीके मल्टीप्लाई बाय 100. ये इसके फॉर्मूलाज है वीक बेस वीक एसिड के लिए. प्रिडिक्शन क्या ये प्रिडिक्ट करता है, वेरी वीक एसिड होगा, पीके अगर ग्रेटर देन 8 होगा तो एग्जांपल इसमें फेनिटाइन है जो कि अनआयनाइज है ऑल पीएच वैल्यूज. it will be unionized at all pH value, and absorption is independent of GIT pH. Second is the मॉडरेटली वीक एसिड. इसमें क्या होता है, पीके है दैट इज़ 2.5 to 7.5 होता है. इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आते हैं. इसमें largely exist in ionized form and change in pH in the acidic stomach ये अफेक्ट करता है. एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक में क्या होता है, it will be lesser than 2.5, it will chromolein sodium ionized at all pH and the absorption is poor. बेस का इसमें बताए, वीक बेस में क्या होता है, एग्जांपल इस बेंजोडाइजिपिन, थियोफाइलिन, कैफीन. मॉडरेट में कौन सा है, क्लोरोक्वीन है जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. एंड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम कौन सा देखते हैं, गोनीथायोडीन पुअर एब्जॉर्प्शन होता है जो कि आयनाइज करता है एट ऑल पीएच. लिमिटेशन ऑफ पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस. इसमें हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल मेम्ब्रेन पीएच. इसमें होता है, इसका जो कर्व है दैट इज एस शेप कर्व, पीएच एब्जॉर्प्शन कर्व डिनोटिंग डिसोसिएशन ऑफ द ड्रग, डिफरेंट इन एक्सटेंट ऑफ absorption of the salicylic acid absorbed at given pH then predicted by pH partition hypothesis. Experimental pH absorption curve are less steep, it will get shifted to the left and lower the pH value basic drug, and right पे होने पे क्या होता है, higher pH होता है और acidic drug. This will lead to the suggestion that a virtual pH microhillimate pH virtual membrane pH actually determine the extent of the ड्रग आयनाइजेशन एंड थर्स एब्जॉर्प्शन. सेकेंड इसका लिमिटेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयनाइज ड्रग. इसमें क्या होता है, आयनाइज फॉर्म जो होता है ड्रग का वो एब्जॉर्ब होता है, ओनली सिर्फ अनआयनाइज फॉर्म जो है एब्जॉर्ब होता है. परमिएशन ऑफ द आयोनाइज इज़ निग्लिजिबल. आयनाइज ड्रग में क्या होता है, लो लिपिड सॉल्युबिलिटी और इसमें क्या होता है, परमेबिलिटी भी पुअर होती है. pH of absorption of pH absorption curve shift suggest ionic also absorbs if lipophilic group present. अदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्टिव फ्लो. थर्ड इज द इन्फ्लुएंस ऑफ GI सरफेस एरिया एंड रेसिडेंस टाइम ऑफ ड्रग. एसिडिक ड्रग एब्जॉर्प्शन जो होता है स्टमक में होता है, बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है. इसका जो है अल्कलाइन pH में ही होता है और एसिडिक का एसिडिक pH में होता है. इसमें देखते हैं अनआयनाइज्ड एट लार्जर एक्सटेंट. दिस कैन बी ट्रू अंडर कंडीशन वेयर surface area of the stomach and the intestine are same. Irrespective of GI, pH and degree of dissociation, both acidic and basic drugs are more rapidly absorbed from intestine because of the large surface area, long residence time of the drug in the intestine. Fourth इसका limitation क्या है, pH partition का, कि pH ऑफ एक्वेस अनस्टर्ड डिफ्यूजन लेयर. इसमें क्या होता है, बल्क ऑफ ल्यूमिनल फ्लूइड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेम्ब्रेन बट ए बैरियर विच इज़ कॉल्ड एक्वेस अनस्टर्ड डिफ्यूजन लेयर इज इंटरप्टेड बिटवीन दैम, इंटरपोज बिटवीन दैम. यहाँ पे बताया गया है, दिस इज़ ए लिपोइडल मेम्ब्रेन, यहाँ पे ब्लड है और ये एक्वेस अनस्टर्ड डिफ्यूजन लेयर होता है. The drug must diffuse from aqueous barrier then through the lipid. Therefore, unstirred water layer is rate limiting step in absorption applies to the high molecular weight fatty acid and bile acids.
इसमें देखते हैं लिपोफिलिसिटी एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन. द लिपिड solubility of drug is determined by partition coefficient, whereby the increase in the value that indicates that increase in percentage drug absorbed. सबको पता है पार्टीशन कोएफिशिएंट का क्या होता है. दैट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू द ऑर्गेनिक फेज अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू द एक्वेस फेज. इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल सबको पता है, दैट इज ऑक्टेनॉल एंड वाटर का. इसमें क्या होता है, लॉग पी वैल्यू जो है लेस देन 0 हुआ तो या फिर नेगेटिव हुआ, देन इट विल बी हाईली हाइड्रोफिलिक, जो कि पोलर होता है नेचर में. हाई लॉग पी हाई लिपोफिलिक मोर देन 5 ट्रांसडर्मल रूट होगा. मतलब ये जनरली ट्रांसडर्मल रूट के लिए यूज़ कर सकते हैं. If log p is 0, then lipophilicity and hydrophilicity are equal. HLB is optimum hydrophilicity and lipophilicity. एसिडिक ड्रग, ये फॉर्मूलेस दे रखे हैं इसके. इसका एग्जांपल दे रखा है ड्रग्स का. रैपिड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए एग्जांपल है बेंजोइक एसिड है. एंड मॉडरेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एस्पिरिन. स्लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज barbiturate acid. नेक्स्ट इज द ड्रग परमिएशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओरली एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग जो है एंटर करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड देयर एब्जॉर्प्शन इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली बाय सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन. बाय इसका फॉर्मूला है M=PEFFACAPTS. इसका देखते हैं. M जो है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, PFF दैट इज द इफेक्टिव मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, A जो होता है सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, TES दैट इज रेजिस्टेंट, TRES दैट इज रेजिस्टेंट टाइम ऑफ ड्रग इन GI लूमेन, और CAPP दैट इज एपेरेंट लूमिनल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजर. एक तो लिपोफिलिसिटी और द ड्रग जो एक्सप्रेस किया जाता है लॉग पी में, मॉलिकुलर साइज हो गया, और तीसरा जो है उसकी ड्रग की पोलैरिटी होती है. इसमें देखते हैं ड्रग स्टेबिलिटी के केस में क्या होता है. एक तो ओरल जो भी ड्रग हम लोग ओरली लेते हैं, ओरल डोजेस फॉर्म जनरली क्या आता है, डिस्टेबलाइज होते हैं उसके शेल्फ लाइफ में, ड्यूरिंग इट्स शेल्फ लाइफ और इन द GIT. एंड इसके 2 प्रॉब्लम्स होते हैं. पहला जो है इट विल गेट रिजल्ट इन दी पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ एन ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग. सेकेंड इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इनटू इनएक्टिव फॉर्म, इंटरेक्शन विद 1 or more different components, and either of the dosage form are those present in GIT to form a complex that is poorly soluble or is unabsorbable. डोजेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स देखते हैं. इसमें हमने देखे थे 5 या 6 होते हैं. पहला जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम है. डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है एब्जॉर्प्शन के लिए. इसमें देखते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ बाइंडर, और कंप्रेशन फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसमें क्या होता है, इन विट्रो डिसइंटीग्रेशन दैट गिव्स नो मीन्स ऑफ गारंटी ऑफ ड्रग्स bioavailable, because if disintegrated drug particles do not dissolve, the absorption is not possible. अगर कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो उसका एब्जॉर्प्शन इम्पॉसिबल है. एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस इम्पॉसिबल है. दैट एब्जॉर्प्शन विल बी नॉट पॉसिबल. उसकी कोई भी है इन विट्रो डिसइंटीग्रेशन में इन विट्रो डिसइंटीग्रेशन का गारंटी नहीं दे सकते ड्रग्स में. और हार्डर टैबलेट होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ द बाइंडर होंगे, हार्डर टैबलेट विद द लार्ज अमाउंट ऑफ बाइंडर, देन उसका जो है लॉन्ग डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा. एग्जांपल इसमें हम बताएंगे कि शुगर कोटेड जो भी टैबलेट्स होते हैं ना, उनका जो ये डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, और फास्ट डिस्पोजेबल टैबलेट होता है ना, उनका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो शॉर्ट होता है. मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स देखेंगे. इसमें क्या होता है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग वेरिएबल, इसमें क्या होता है, ड्रग डिसोल्यूशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स थ्रू द कन्वेंशनल सॉलिड डोजेज फॉर्म, लाइक वी कैन से टैबलेट, कैप्सूल्स. एक्सिपिएंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इन्फ्लुएंस करता है एक तो एब्जॉर्प्शन या फिर डिसोल्यूशन को. सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग डिसोल्यूशन. इसमें फर्स्ट है मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन एंड सेकेंड इज द कंप्रेशन ऑफ फोर्स. पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन में क्या आता है, वेट ग्रैनुलेशन है विच इज़ मोस्ट कन्वेंशनल टेक्निक, और इसमें डिसोल्यूशन जो है फास्ट होता है, मतलब डिसॉल्व जो है फास्ट होगा. लिमिटेशन इसका बताया कि जो है उसमें जो है क्रिस्टल बीज जो है फॉर्म होते हैं लिक्विड प्रेजेंट होने की वजह से.
and liquid may act as a medium for affecting chemical reaction such as hydrolysis. तीसरा जो इसमें क्या है, ड्राइंग स्टेप जो होता है वो क्या है, थर्मोलायबल, हार्म कर सकता है थर्मोलायबल ड्रग्स को. इन्फ्लुएंस ड्रग डिसोल्यूशन आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द ड्रग डिसोल्यूशन. इसमें एक तो मेथड एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्लेंडिंग, एंड मेथड और टाइम, टेम्परेचर जो है ड्राइंग को लगता है उसको इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस करता है. सेकंड जो इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन है, इसमें हम देखेंगे डिसोल्यूशन एट फास्टर रेट हो गया. मेथड दैट रिजल्टेड इन सुपीरियर प्रोडक्ट इज एग्लोमेरेटिव फेज ऑफ कम्युनिकेशन, APOC. इसमें ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग्स जो होता है बॉल मिल फॉर लॉन्ग टाइम, इट विल अफेक्ट द स्पॉन्टेनियस agglomeration. Then these tablets produce worse, stronger and rapid dissolution. कंप्रेशन फोर्स, इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा होगा उसमें क्या है, डेंसिटी और हार्डनेस जो है टैबलेट की बढ़ाएगा, और उसकी वजह से जो है पोरोसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगा. पेनिट्रेशन एंड हेंस पेनिट्रेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट इन टू टैबलेट, एंड थर्स इन स्लोइंग, इसका जो एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन है क्या स्लो हो जाएगा. यहाँ पे उन्होंने कर्व का बताया. Influence of tablet density, porosity and hardness, disintegration time and dissolution of tablet. ये compression force जो है इन सब फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स है और ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन है. ये डिफरेंट कर्व्स के बारे में होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व A एंड B इज़ पॉसिबल इन कर्व C एंड D. ऑन दी अदर हैंड इसमें बताया कि हाई CF मतलब हाई कंप्रेशन फोर्स होगा तो वो कॉज क्या करेगा, डिफॉर्मेशन, क्रशिंग या फिर फ्रैक्चर ऑफ ड्रग पार्टिकल इनटू स्मॉलर वंस, और उसकी वजह से इट विल कॉजेज ए लार्ज इंक्रीज इन द इफेक्टिव सरफेस एरिया. इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन डिसोल्यूशन रेट ऑफ टैबलेट्स. फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसमें हम देखेंगे मोर द नंबर ऑफ एक्सिपिएंट्स इन द डोजेज फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स इट एंड ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स. कॉमनली यूज इसमें हम देखते हैं, एक पहला जो है व्हीकल है. व्हीकल क्या करता है, इसमें व्हीकल 3 कैटेगरीज के होते हैं. एक एक्वेस हो गया, नॉन एक्वेस हो गया जो कि वाटर के साथ मिसिबल है, और तीसरा जो है नॉन एक्वेस वाटर इमिसिबल. एक्वेस में हम वाटर सिरप ऐसे बता सकते हैं. नॉन एक्वेस वाटर इमिसिबल, इसमें PEG हो गया, ग्लिसरिल सॉर्बिटल हो गया. नॉन एक्वेस वाटर इमिसिबल में वेजिटेबल ऑयल हो गया. दैन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जनरली डिपेंड्स ऑन द मिसिबिलिटी विद द biological fluid. Miscible vehicle causes rapid absorption. Example is प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल. डाइलुएंट्स फिलर हो गया. हाइड्रोफिलिक डाइलुएंट्स जो होता है इम्पैक्ट होगा उसका एब्जॉर्प्शन पे, और ये जो है हाइड्रोफोबिक डाइलुएंट्स जो है रिटार्ड करेंगे एब्जॉर्प्शन को. Also there is a drug diluent interaction forming insoluble complex and retards the absorption और poor bioavailability. Example दे रखा है इन्होंने टेट्रासाइक्लिन डाइकैल्शियम फॉस्फेट का, which is added to capsule or tablet. If formation required dose is inadequate to promote necessary bulk, may be organic carbohydrate, starch, lactose, micro क्रिस्टलाइन सेलुलस. और इनऑर्गेनिक में कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, DCP मोस्ट कॉमन, जैसे डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो है हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक का बताया था. बाइंडर्स एंड ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स में क्या होता है, ये क्या होता है, होल्ड द पाउडर. इट जनरली होल्ड्स द पाउडर टुगेदर टू फॉर्म ए ग्रैनुल्स एंड प्रमोट कोहेसिव compacts for directly compressible materials to ensure that the tablet remain intact after compression. हाइड्रोफिलिक बाइंडर जो है मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं. एंड एग्जांपल इसका है जो है स्टार्च, सेलुलस डेरिवेटिव, एकेशिया एंड PVP एक्सेट्रा. बेटर डिसोल्यूशन होता है इनका विद पुअरली वेटेबिलिटी ड्रग्स, वेटेबल ड्रग्स लाइक फेनासिटेन बाय इम्पार्टिंग हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज टू द ग्रैनुअल surface. PEG 6000 is deleterious binder for phenobarbital. Non-aqueous binders हमने देख लिया, इथाइल सेलुलोज रिटार्ड्स ड्रग डिसोल्यूशन. डिसइंटीग्रेंट्स देखते हैं, मोस्टली जो है हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में. ये जो डिसइंटीग्रेंट्स डिक्रीजेज इन अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स. It will going to shows the low bioavailability. It generally overcomes the cohesive strength of tablet. इसमें example है bentonite, V-gum is the adsorbing disintegrants example, and these are avoided with low dose drugs like we can say digoxin and steroids.
माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जो है एक गुड डिसइंटीग्रेंट भी है या और बाइंडर की तरह भी उसे यूज़ करते हैं। इसका जो है कंप्रेशन फोर्स जो है हाई होता है, ये रिटार्ड करता है डिसोल्यूशन को। लुब्रिकेंट में कॉमनली जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये हेल्प करते हैं फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स में। ये इनहिबिट करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ वाटर का टैबलेट में और डिसोल्यूशन एंड थर्स डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स में हम लोग कौन से यूज़ करते हैं? SLS कार्बोवैक्सिस, ये जो है प्रमोट करते हैं ड्रग डिसोल्यूशन को। और ये जो दूसरा हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट दैट इज़ कॉमनली यूज्ड और जनरली यूज इज़ द मैग्नीशियम स्टीरेट। कोटिंग में हम देखते हैं एंटेरिक कोट हो गया, देन शुगर कोट, ये इसका सीक्वेंस दे रखा है। डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ सर्टेन कोटिंग मटेरियल चेंज ऑन एजिंग लाइक शेलेक coated tablet on prolonged storage dissolve more slowly in the intestine and prevented by incorporating little PVP in the coating formulation. Buffers का देखते हैं, it is useful in creating right atmosphere for drug dissolution as was observed for buffered aspirin tablet. However, certain buffer system containing potassium cations inhibit drug absorption as seen with vitamin B2 and sulfanylamide suspending and viscosity agents stabilized the solid drug particles and thus affect drug absorption. Macromolecular gum forms an unabsorbable complex with drug. For example, we can say sodium carboxymethylcellulose with amphetamine. Viscosity imparters act as mechanical barrier to diffusion drug from its dosage form and retard the GI transit of drug. Hydrophilic polymer example is vegetable gum, acacia tragacanth and सेमी सिंथेटिक गम में हम लोग CMC या फिर CMC यूज़ करते हैं और MCC होगा माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। सर्फेक्टेंट में हम देखते हैं में इन्हांस, ये जो इन्हांस करेगा या फिर रिटार्ड करता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन बाय इंटरेक्टिंग विद ड्रग और द मेम्ब्रेन। और इसमें मैकेनिज्म जो है इंक्रीज करेगा वेटेबिलिटी, एक तो ये प्रमोट करेगा वेटेबिलिटी। कौन करता है? एग्जाम्पल इज फेनासिटाइन पॉलीसॉर्बेटेटी, better membrane contact of drug for absorption, and third is the enhanced membrane permeability, decreases the absorption with the presence of surfactant. इसमें colorant देखते हैं, even a low concentration of water soluble dye can have minimized effect on the dissolution rate of several crystalline drugs. Example इसमें बताएं, brilliant blue retards dissolution of sulfathiazole, inhibits the micellar solubilization effect of bile acid, which may impair absorption of hydrophobic drugs like steroid. Cationic dyes are more reactive than anionic dye. Power of absorption on primary particles. Complexing agent alter the physicochemical biopharmaceutical properties of drugs. Complex may alter stability, solubility, molecular size, partition coefficient, diffusion coefficient. Enhance dissolution through formation of soluble complex. Example is ergotamine tartarate, caffeine complex and hydroquinone digoxin complex. Enhance solubility for better membrane permeability. Example इसमें है caffeine PABA complex. Enhance GI absorption of heparin in the presence of EDTA. Then reasons for bioavailability. LMS fail to dissociate at absorption site. Low molecular size, it will get fail to dissociate at the absorption site. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टल ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये जो है इंक्रीज करते हैं फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन अबव द सैचुरेशन, इट विल रिजल्ट इन दी सुपर सैचुरेशन, लीड टू द ड्रग प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन के एग्जांपल्स हैं सच एज PVP, HPMC, PEG, PVA. It can be prevented by addition or increasing the viscosity of vehicle. Fourth is the dissolution time. It is important, which affect the drug absorption. It is a process in which a solid substance solubilizes in a given solvent, that is the mass transfer from the solid surface to the liquid phase. Nature of the nature and type of the dosage form, मतलब ये डिपेंड करता है कौन से टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म है। इसमें क्या सबसे ज़्यादा solubility जो है easily
सोल्यूबलाइज कौन सा हो जाएगा, सॉल्यूशन, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सॉल्यूशन फॉर्म में है। टैबलेट का कैसे होता है, उसको डिसइंटीग्रेट, डी एग्रीगेशन, फिर वो डिसोल्यूशन फॉर्म करता है। सो सॉल्यूशन फॉर्म, डोजेस फॉर्म जो है इजीली डिजोल्व होगा। उसके बाद इमल्शन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, देन सस्टेन्ड रिलीज, ये सारे। हाई एक्वेस सॉल्युबिलिटी है पेडियाट्रिक में। जनरली सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म जो है हम लोग पेडियाट्रिक के लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, हाई एक्वेस सॉल्युबिलिटी होती है। मोर कॉम्प्लेक्स डोजेस फॉर्म जो होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ रेट लिमिटिंग स्टेप एंड ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द bioavailability problems, and selection of the dosage form is a very important step in bioavailability of the drug, and due to release profile in the biological fluid and membrane. Last one in this is the product age and storage condition. एडवर्सली इफेक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी को बाय चेंजिंग इन स्पेशली दी प्रॉपर्टीज ऑफ द डोजेज फॉर्म लाइक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज विद solution dosage form precipitate of drug due to altered solubility. Metastable into poorly soluble stable polymorph can occur during shelf life of product. Suspension dosage form decrease the rate of drug dissolution and absorption. In solid dosage form, tablet dissolution and disintegration are generally affecting aging and storage condition. Excipients harder on storage. Example is PVP, acacia. Softening of binders during storage. इसमें example है CMC. This is all about the factors, and the last factor, which is remaining patient related factor, it will be the separate video will be uploaded for that. Thank you.